Dear students, myself D.K. Shukla. Today we are going to study exercise 5.1. It is containing continuity and differentiability. Some problems we will learn that how to solve these questions as continuous and differentiability. So see here, your first question is saying here that prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. As we know that polynomial function is continuous on its domain. What is here domain? Here domain is a real number. So these are 3 points. So we are going similar points here. First point at x is equal to 0. So see here your function as x tends to 0, f of x is equal to x tends to 0, 5x minus 3. We also say that your definitions by putting the value of x. Here x is not equal to 0, but we have tends to 0 as is equivalent to 0. So putting it means applying the limit 5 into 0 minus 3. After this we get minus 3. It will also be equal to f of minus 3. Hence we get according to definition of continuous that limit x tends to 0, f of x is equal to f of minus 3. So function is continuous at x is equal to 0. आप इसको x is equal to minus 3 में भी सिमिलरली कर सकते हैं और x is equal to 5 में भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया. देखिए x is equal to 5 के लिए जैसे हमने किया, so limit x tends to 5 it is equal to f of x. It means x tends to 5. फंक्शन की वैल्यू आपके पास 5x minus 3 है, हमने फंक्शन की वैल्यू रख दिया. अप्लाई द लिमिट में x की जगह हमने 5 पुट कर दिया, तो 5 into 5 minus 3. After solving we get 22. It is also equal to f of 5. Thus limit x tends to 5, f of x is equal to f of 5. So function is also continuous at x is equal to 5. आप similarly x is equal to minus 3 के लिए भी ऐसा कर लेंगे और सेम प्रॉब्लम इसी टाइप की आपकी 5 तक है. नेक्स्ट में जैसे आपका 6.2 नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर s इज डिफाइंड. मतलब जो आपका जैसे यहाँ पर कहाँ पर डिफाइन है, LHS में किस पॉइंट पर डिफाइन है, फंक्शंस RHS में किस पॉइंट पर डिफाइन है, एंड एट दैट पॉइंट इज आल्सो इन व्हिच पॉइंट द फंक्शन इज डिफाइंड वी विल बी सी हियर. सो सी योर क्वेश्चन नंबर 7. f of x is equal to modulus of x plus 3 if x is less than or equal to minus 3 and minus 2x if minus 3 is less than x is less than 3 and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. Here your function is defined at x equal to minus 3 and 3. So we will be test the continuity at x equal to minus 3 and at x equal to 3. First at x equal to minus 3 by your basic concept. See here LHL left handed limit. It means limit x tends to minus 3 negative f of x is equal to limit x tends to minus 3 negative the value of f of x mod of x plus 3. So आप क्या करेंगे, LHS में हम क्या करते हैं minus 3 minus f पुट करते हैं. What is h here? Here 0 is less than or equal to f is less than very less than 1. h की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के लेकिन 1 से बहुत छोटी है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट है. आप कभी इनको जो है डेल एक्स से भी हायर क्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं. सेम चीज है, ये x का इंक्रीमेंट वैल्यू है, तो हमने क्या किया x इक्वल टू -3 माइनस x. अब हम जैसे देख रहे हैं लिमिट भी हमको चेंज करना पड़ेगा यदि हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन में कर रहे हैं तो as x tends to -3 then यदि आप -3 पुट करेंगे तो h tends to 0. चेंज करके हमने लिया लिमिट h tends to 0 -3 माइनस h, हमने वैल्यू यहां पर पुट किया प्लस आपका 3 हो गया. Right? After this, after applying the limit and after calculate, we get it is equal to 6. Similarly, for RHS, limit x tends to minus 3 positive f of x. अब आप f of x यहाँ पर वैल्यू कीजिए और
या ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब आपका फंक्शन जो डिफाइन है -3 पर डिफाइन है और आपका 3 पर डिफाइन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो उन्हीं पर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अब हम सेकंड पॉइंट के लिए जा रहे हैं जो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका डिफाइन है। तो इसके लिए हमने LHS लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव के लिए f ऑफ x हमने जो है 3 नेगेटिव पर आप देखिए जैसे 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन आपका -2x यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू है। तो हमने क्या किया यहाँ पर -2x रखा और 3 नेगेटिव के लिए जैसा आप करते हैं हर एक में आपको नेगेटिव के लिए वो पॉइंट और -h, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया x इक्वल टू 3 - h एट लिमिट x टेंड्स टू 3 इट इंप्लाइज दैट x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 इन ब्रैकेट आपका हो गया 3 - h। अब हमने यहाँ पर देखा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट -2 हमने 3 और h की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 2 3 जा -6 आपका LHS की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आपका RHS में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 6x + 2, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 6 इन ब्रैकेट आपका 3 + h + आपका 2 हो गया, इट इज इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट 6 इन ब्रैकेट आपका 3 + 0 + 2 आपका 6 3 18 + 2 इट मींस 20 हो गया। आप यहां से भी कह सकते हैं कि आपका LHS और RHS इक्वल नहीं है, इट मींस फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो आपका क्वेश्चन बोलता है कि किस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूटी है, तो ये आपका 3 पर डिसकंटीन्यूटी। यहां पर हमने f ऑफ 3 की भी वैल्यू हमने लिख दिया कि 6 और 3 + 2 हियर डिफाइंड इज इक्वल टू ये जो केसेस है आपका 6x + 2 में डिफाइंड है जो इक्वल टू के केस यहां पर लिखा हुआ है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट LHS is not equal to RHS, so you reject that function is discontinuous at x equal to। देख रहे हैं आपकी इस एक्सरसाइज में सिमिलर प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम जैसे आते हैं ये 26 to 29 क्वेश्चंस में आपका k का वैल्यू पूछ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन जो है गिवन पॉइंट पर डिफाइन है। तो आपका 26 क्वेश्चन जैसे देखिए ये है आपका f ऑफ x इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाय pi - 2x if x is not equal to pi by 2, ये LHS और RHS दोनों के लिए डिफाइन है। और आपका x इक्वल टू pi by 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू हो 3, अब आपको इस पर जो है दिया गया है कंटीन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू pi by 2 यानी फंक्शन pi by 2 पर आपका कंटीन्यूअस है। आपको इस k की वैल्यू बताना है जैसा आपके क्वेश्चन में कहा है। तो हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू बेसिक कांसेप्ट एज ए कंटीन्यूअस वी नो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट, सो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर हमने क्या किया pi by 2 पर जैसे आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है तो तीनों की वैल्यू का हमने इक्वल किया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दैट इज लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ pi by 2। सो सी हियर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x for LHS and RHS and f of pi by 2 we get here। अब आप इनमें से कोई भी दो वैल्यू आप ले लीजिए, या तो RHS को थर्ड के साथ ले लीजिए या तो LHS को थर्ड के साथ ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको k की वैल्यू बताना है, इसमें भी k है और ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें आपको इजी पड़ेगा। फंक्शन आपका ऑलरेडी कंटीन्यूअस है तो दोनों को लेके वैल्यू आपको सेम मिलेगी। हमने क्या किया RHS और इसको उठाया, इट मींस सेकंड और थर्ड स्टेप को हमने लिया तो लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 पॉजिटिव k cos x डिवाइडेड बाय pi - 2x। अब आपका पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे pi by 2 plus h हमने सब्स्टिट्यूट किया, स्मॉल इंक्रीमेंट है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos pi by 2 plus h डिवाइडेड बाय pi - 2 इन ब्रैकेट आपका pi by 2 plus h हो गया। अब यहां पर k इक्वल टू आपका 3 है। आफ्टर यू नो दैट cos pi by 2 plus थीटा इज इक्वल टू आपका माइनस sin थीटा होता है, तो हमने यहां पर क्या किया sin h लिखा, ये आपका k है माइनस और सिमिलरली जब इसको हमने सॉल्व किया तो pi से pi आपका कैंसिल हो गया, -2h ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस अप्लाइंग द लिमिट वी गेट k by 2 इक्वल टू 3 सिंस वी नो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h डिवाइडेड बाय h इक्वल टू 1, thus द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। ये आपका 26 27 29 में सिमिलर प्रॉब्लम है। अब आपके ये आपके कंपोजिट फंक्शन वगैरह में जैसे आपका है 31 32 33, तो 31 प्रॉब्लम जैसे आप
देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब ये देख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन है, तो हम इसको हमने ब्रेक किया। अब हम ब्रेक कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने सपोज किया कि ये h of x इज इक्वल टू cos x है और g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन वी प्रूव किया दैट HOG of x इज इक्वल टू f of x। कैसा हमने किया, बाय ऑपरेशंस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने लिखा h इन ब्रैकेट g of x, हमने g of x की वैल्यू पुट कर दिया। g of x आपका x स्क्वायर है, तो h x स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि ये x की जगह x स्क्वायर हमने पुट किया, ये h of x स्क्वायर को हमने लिया जो f of x। अब हम ये देखते हैं अपने डेफिनेट प्रॉपर्टी के आधार पर कि sin x और cos x फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं ऑन इट्स डोमेन। तो यहाँ पर h of x इक्वल टू cos of x है, इट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, हमने ये पर लिख दिया प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। और g of x स्क्वायर है, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, जैसा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपने क्या पाया कि सो f of x इक्वल टू g of x। अब आपकी प्रॉपर्टी कहती है यदि आप ये दो फंक्शन आपके क्या है कंटीन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन पर, तो कॉमन डोमेन पर उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है। इसी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग हमने लिख दिया cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस